Hello everyone. I hope all of you are doing good. I welcome all of you to IES Master channel. And yesterday, the GATE 2023 result has been announced. And I know that you all are very excited. जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिन लोगों ने रैंक लाया है, दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड. जिनका थोड़ा रैंक रह भी गया है, वो थोड़े डिप्रेस हो सकते हैं, थोड़े चिंता में हो सकते हैं, और जिनका शायद क्वालिफाई नहीं हुआ है, दे ऑल्सो विल बी लिटिल बिट डिप्रेस्ड. बट व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट that this is not the time to get depressed. In fact, जिनका रह गया है उनको ये चाहिए कि अब अपनी गलती को आइडेंटिफाई करें, एंड एट द सेम टाइम यू जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट कि कैसे प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के किस तरह से कहां से किन सवालों को ढूंढना है आपको, और प्रॉपर स्ट्रेटेजी करके आपको फिर से तैयारी चालू करनी है. सो विदाउट डिलेइंग मच, टू ऑल ऑफ यू आई वुड लाइक टू invite one of the top 10 ranker from GATE Civil. So just wait. So congratulations, welcome, and many congratulations to Shubhadarshini. Thank you, sir. So how Thank you you are so feeling? much. How you are feeling now? Sir, I am feeling very happy, very elated to have this 8th rank in GATE 2023. Oh, that's good. So after getting this 8th rank, I can understand कि काफी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, आपके घर वाले भी खुश होंगे. सो मुझे लगता है कि अभी इस मोमेंट पर जहां बच्चों के बहुत सारे सवाल रहते हैं जी जब सर. तैयारी करते हैं, आपके भी रहे होंगे. So I think if you can tell us a little bit about your journey, which can help जी the सर. other students, those who are preparing now for upcoming GATE exam. तो थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे हमें. Sir, my journey was a very enjoying one. I joined civil engineering in 2015, BTech in civil engineering in NIT Rourkela. For the very first year, I was like clueless. What will I do next? But in second year, when the civil engineering subject started coming up, I could connect to those subjects. I felt very interesting. Then I started looking for what opportunities I can pursue in civil engineering. Then I came across GATE and EAC. At that time, one of my senior had suggested to get IS Master postal course, some books of IS Master. So I purchased in the आप very IAS second master year. मतलब you are actually attached to the IAS master from very beginning of your journey, isn't it? Definitely, Oh, sir. that's great. From the very beginning, from the very 2016 onwards, only I got attached to this IS Master. Actually, in NIT Raurkela, we don't have any coaching facilities actually. So it was only through the IS Master books I could gain clarity in various concepts. I practiced all those questions which were there. I started studying the concepts repeatedly, and those were I can say that turned my life actually. Those were very helpful actually throughout my preparation. It built my foundation. And when the GATE 2019, my final year GATE exam came very near, I started appearing for the test series, and I could see Okay. that the concept, that the hard work that I had done for the past 3 years were showing results, were giving me fruits. And in GATE 2019, I just scored GATE rank was 457. Then actually in the very next year, I was indulged in dual degree program. So in the final year of my BTech MTech dual course 2020, I again reappeared GATE, and there I got 141 GATE rank. So So after that, it I was I think joined my job. yeah, it was I think continuous improvisation, huh? Definitely, sir. Then in 2021, I joined State Engineering Services of Odisha, and I quit that service in September 2021. And then I joined Coal India Limited. Here the work profile was very chilled actually. So again, I pursued my interest of reading the civil engineering subjects, and reappeared GATE. But now my main focus is to clear Indian Engineering Services examination 2023. Okay. So main focus is engineering services, right? So Yeah, I I think you have lost the taken EAC.
I lost Yeah, ESC 2022. so, and you were explaining about just, okay, first you joined the, book postal program, then you go for the, you went for the test series. Then this time, I think, you have then attended the online classes also from the IAS Master. And there was a Yes, continuous improvisation in your rank, isn't it? So that was yes, sir. amazing that you were continuously striving for good ranks. You didn't, मतलब आपने कभी छोड़ा ही नहीं कि मुझे जी अगर जी जी अच्छा रैंक नहीं आया है तो मुझे और कुछ करके अच्छा रैंक लाना है. And you told us जी just now that your main motive is your engineering services, isn't it? yes, sir. Okay. Can you tell us one more thing very importantly? इस पूरे जर्नी Yes, में आपके साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे. व्हाट यूड लाइक definitely. टू, आपने उसको कैसे कंसिस्टेंटली मेंटेन किया? ये बहुत जरूरी है सारे बच्चों के लिए, क्योंकि पूरे एक प्रिपरेशन टाइम पीरियड में बहुत सारे बच्चे नहीं, सभी के साथ आई थिंक उनके पास अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, चाहे बीमारी की टर्म में हो या कुछ काम आ जाए, तो उसको मैनेज कैसे करना है? जी सर. सर एक्चुअली ये पूरा जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तो आए. तभी वो अप्स एंड डाउन्स में मोस्टली हमको एक अच्छा सा सपोर्टिंग सिस्टम बिल्ड करना चाहिए. जैसे मेरे लिए मेरे पेरेंट्स थे, तो जब भी ओके. कोई डाउन मोमेंट होगा या कुछ डिप्रेशन होता, तो मैं उनके साथ बात करती तो वो मेरे को मोटिवेट कर लेते. और अगर कुछ ज्यादा दिन मतलब ज्यादा वो थोड़ा उसका इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए मैं ब्रेक ले लेती, कुछ एक दो दिन का ब्रेक ले लेती. फिर जो भी हॉबीज है आप थोड़ा परस्यू कर सकते हैं जब आप डाउन में होंगे. और फिर खुद को बस एक ही मतलब मन में वो एंथुसियाज्म रहना चाहिए कि मुझे कुछ अच्छा रैंक लाना है, अच्छा जॉब पाना है, अपना ड्रीम को पाना है. तो उतना अगर आपके दिल में है कि मैं अपना गोल को अचीव करूंगी और अच्छा स्ट्रॉन्ग विल पावर डिटर्मिनेशन हो, तो अप्स एंड डाउन्स कैन नॉट हिंडर योर प्रोग्रेस एक्चुअली. ओह, दैट्स ग्रेट एक्चुअली. मतलब क्योंकि ये बच्चे कल भी मुझे क्लास में पूछ रहे थे, जब जी सर. ऑफलाइन के क्लासेस में काफी पूछ रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहता है, और कुछ बच्चे जो पिछले साल एग्जाम दिए थे उनके ठीक गेट के एग्जाम के पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, एंड दे वर अफ्रेड जी कि सर. मैं शायद सही से प्रिपरेशन नहीं कर पाया हूँ. आई थिंक यू हैव गिवन अ वेरी राइट आंसर कि आपको अपना एक सपोर्ट सिस्टम बिल्टअप करना चाहिए जो आपको हमेशा एक पॉजिटिव मोड में पुश करता रहे. अच्छा, जी एक और सवाल है जो बच्चों ने काफी पूछा हुआ है और बच्चे हमेशा हर साल पूछते हैं हमसे, एंड जी हाउ सर. यू डिड इट, इट्स रिगार्डिंग द नोट्स मेकिंग. शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए? व्हाट वुड लाइक टू से अबाउट दैट? सर नोट्स आर डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल. इतना बड़ा सिलेबस है हमारा सिविल इंजीनियरिंग में, वैसे 12 to 13 सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स. उसको लास्ट मिनट में नर्वसनेस आ जाता है रिवाइज करने में, पूरा इतना वॉल्यूमिनस वो सब रहता है, मैटर कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी. तो वो सिचुएशन में जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, जब भी हम कोचिंग का क्लासेस लेते रहते हैं, कोचिंग का क्लासेस में जो नोट्स मिलता है वो तो बेस्ट है, मतलब उसका तो ओके. कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. लेकिन अपना खुद का पर्सनल नोट्स भी, वो प्रिपरेशन इनिशियल 6 मंथ्स के प्रिपरेशन के दौरान आपको जो जो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लग रहा है उसी को बस नोट मतलब लिख लीजिए. और कोई कोई अच्छा अच्छा क्वेश्चंस हो जो आपके सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको भी लिखकर एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंसिव क्रिस्प नोट अगर आप 20 पेजेस का ईच सब्जेक्ट का बना लेते हैं, या 10 to 15 पेजेस का, तो वो एट द एंड जब आप रिवाइज करने चलेंगे, बस उसी को अगर आप देख लेते हैं तो वो पूरा सम अप कर देता है, पूरा आपका प्रिपरेशन को वो एक अच्छा सा बूस्ट बूस्ट कर लेता है. मतलब अच्छा लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देता है एक्चुअली. ओके. अच्छा, शॉर्ट नोट्स बना दिए और बाद में आपने उससे रिवाइज भी किया, बट कैन यू टेल अस कि रिवीजन आपने कितनी बार किया होगा? सर रिवीजन के लिए तो सर मैं एक्चुअली ऐसा रखती थी, जब भी एक गेट एग्जाम खत्म हुआ तो उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स में पूरा डिटेल में अच्छे से जो भी क्वेश्चंस हुआ पूरा अच्छे से, वो जो आईएएस मास्टर का स्टडी मटेरियल को मैं पूरा अच्छे से एक बार गो थ्रू करती. फिर बाकी बचा नेक्स्ट 3 मंथ्स और 2 मंथ्स जो लास्ट 5 मंथ्स रहता है. तो फिर एक 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 रिवीजन 6 मंथ्स के बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं पूरा सिलेबस को एक बार
जो जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हो उसी को कवर कर कर एक बार उसको कंप्लीट करती, और बाकी लास्ट 2 मंथ्स में मैं बस टेस्ट सीरीज के थ्रू और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को उन्हीं को रिवाइज करती। ओके ओके, ठीक है। लेकिन रिवीजन में जब रिवाइज किया आपने, तो ये कभी कुछ कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो उन्होंने क्या हर बार पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करते हैं, और शायद इस वजह से उनको ये नहीं समझ में आता है कि रिवीजन के अलग अलग कैटेगरी हो सकते हैं। आप एक रिवीजन में किसी एक टफ पोर्शन को अलग से रिवाइज कर सकते हैं, इजी पोर्शन को किसी अलग ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। आई थिंक ये स्ट्रेटेजी आपकी बहुत अच्छी रही थी, दैट वाज एक्चुअली नाइस। और लेकिन साथ में आपने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था। आप ये बताइए कि टेस्ट सीरीज के करने से किस तरह से बेनिफिट होता है, और खास तौर से उसमें आपको ये बताना है क्योंकि ये सवाल फिर बच्चों का होता है। इनिशियल स्टेज में बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, देन इफ दे आर नॉट गेटिंग द मार्क्स फ्रॉम द टेस्ट सीरीज दे विल बिकम डिप्रेस्ड, व्हाट दे शुड डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू यूटिलाइज द टेस्ट सीरीज, एंड इफ दे आर नॉट गेटिंग द मार्क्स फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, व्हाट दे शुड डू। सर मैं क्या करती थी सर, टेस्ट सीरीज में कभी भी अपना रैंक में कभी देखती नहीं थी एक्चुअली। मैं टारगेट रखती थी कि मेरा जो मिस्टेक्स है वो डे बाय डे रिड्यूस होना चाहिए। अगर रैंक देखेंगे तो कभी कभी मेरे को भी डिमोरलाइजिंग फीलिंग आता था। तो मैं क्या करती थी कि जो सब्जेक्ट वाइज जो मतलब ईच सब्जेक्ट का भी पार्ट पार्ट टेस्ट रहता है, उसको मैं जब इनिशियल 6 मंथ्स में वो सब टेस्ट कंप्लीट कर देती थी। फिर जो फुल सब्जेक्ट टेस्ट है और जो फुल मतलब पूरा एंटायर सिलेबस टेस्ट को लास्ट के 3 मंथ्स में मैं कवर करती, और उसके जो डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस में जो जो मतलब क्रिटिकल क्वेश्चंस है उसको लेकर रिवाइज कर कर उसको सॉल्व करती। मैं एक्चुअली वो रैंक्स पर ज्यादा फोकस नहीं करती थी, इसलिए थोड़ा मोटिवेटेड रहती थी और मेरे लिए वो हेल्पफुल रहा एक्चुअली। Okay, that was very nice. One more thing, very important one, I just forgot. You are from NIT Rourkela, right? So what message यस actually you, क्योंकि आप ये जब बोल रहे होंगे तो बाकी बच्चे भी सुन रहे होंगे, एट द सेम टाइम योर कॉलेज स्टूडेंट्स, आपके जो जूनियर होंगे वो भी सुन रहे होंगे, तो what kind of message you would like to deliver to them, the final message from your side? बी डिटरमाइंड, be have very strong willpower. Nothing can deter you from getting what you want actually. No one can hinder you from achieving your dream. Just be determined and willpower. सारे obstacles automatically एक एक हटते जाएंगे, आपको बस determined रहना चाहिए। Acha, one few more things just I would like to ask. Shubhadra, when you were preparing for the GATE or maybe ES, so let us tell कि जब ES और GATE का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपको फोकस आपका जो था, गोल था, जनरली बच्चों का पहले स्टार्ट जब करते हैं तो ES रहता है उनका गोल। कई बच्चे ES करते करते सिर्फ ES पे ही ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, लास्ट तक वही देते हैं। फिर कुछ बच्चे ES करते हुए तैयारी लास्ट में वो गेट पर स्विच करे जाते हैं। तो आपका इस बारे में कैसा स्ट्रेटेजी रहा था? सर एक्चुअली वो जो टेक्निकल सिलेबस रहता है सर, दोनों में सिलेबस कॉमन रहता है। तो अगर हम सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रास्प कर ले, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर दे, तो दोनों के लिए ही वो हेल्पफुल रहता है। बाकी Yeah. ईएसी में जो एक्स्ट्रा रहता है नॉन टेक सब्जेक्ट्स, जो आप इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप कर सकते हैं, मतलब जब ऑनलाइन क्लासेस होता रहेगा तब आप करते रहिए, और बस उसके लिए आप जितना भी पढ़ ले वो हमेशा वो सिलेबस इतना भास्ट रहता है आप पूरा कवर ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया था, पहले से पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही मैंने पढ़ाई किया, बस नॉन टेक सब्जेक्ट्स का मैंने क्लासेस अटेंड किया। फिर क्या अच्छा। हुआ जब फिर टेस्ट सीरीज का जब आया तब मैंने क्या किया, गेट का मतलब गेट से पहले कुछ गेट स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज दे दिए, और जब गेट का एग्जाम खत्म हुआ तब मैंने वो नॉन टेक वाले जो टेस्ट सीरीज थे जो ईएसी के स्पेसिफिक रहते हैं वो दे दिए। गेट से पहले मैंने ईएसी और गेट दोनों के टेस्ट सीरीज दे दिए थे वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स वाले, इसलिए मेरे को वो जो कॉन्सेप्ट जो मैंने ईएसी के से कुछ सीखा, कुछ गेट के क्वेश्चन से सीखा, दोनों मेरे को दोनों एग्जाम में हेल्पफुल हो गए। बस वो गेट एग्जाम खत्म होने के बाद जो 1 वीक का इंटरवल मिलता है उसमें आप नॉन टेक सब्जेक्ट्स को ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं, उनका स्पेसिफिक टेस्ट को रिवाइज कर सकते हैं। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जैसे मतलब जैसे आईएएस मास्टर में जैसे क्लासेस चलते हैं नॉन टेक सब्जेक्ट्स का, वही सफिशिएंट रहता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी आपसे कि जी इस जर्नी के दौरान आप अभी हाउ मेनी आवर्स यू आर एक्चुअली स्टडिंग इन अ डे? सर, बेसिकली currently I am working,
So I have to Oh. spend like 6 to 7 hours in my office actually, Coal India Limited. I'm working in Coal India Limited. So बाकी मैं office, I used to return from office at 7 p.m. So 7 p.m. to 8 p.m. I used to have 1 hour break. Then after that, after having dinner, I used to study for 4 to 5 hours actually. Oh, that is great. And in the See, mo- this is really amazing. Because see, this is a real message to all of the students. While working, you were able to get 4 to 5 hours for your, whatever, for your exam, because that was your goal, isn't it? तो जो बच्चे Yes. देख रहे होंगे उनको ये समझना चाहिए कि डिटर्मिनेशन में कितनी ताकत होती है, कि along with your work also you will be able to manage your goal. अच्छा, और एक बात, बच्चे जब स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, दे यूज्ड टू गेट फियर कि शायद मैं गेट लिखूंगा, गेट के एग्जाम से या ईएस के एग्जाम से डरते हैं। तो ये जो फियर है वो इज इट, मतलब क्या ये सही है? सर fear to some extent is required, अदरवाइज आप पूरा डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, आप पूरा डेविएट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए उसको ओवरथिंक करना, ज्यादा नर्वस हो जाना, वो आपके लिए डिट्रीमेंटल हो जाता है, मतलब आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, लाइक मतलब फियर ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिए, उसके साथ रिगरसली एक अच्छे से शेड्यूल बना लीजिए। उसके अनुसार आप टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट, वो पढ़ाई मतलब ऐसे रखिए, टारगेट्स रखिए कि मेरे को ये सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कीप योरसेल्फ बिजी सो दैट वो फियर का जो रिपरकशन आपके ऊपर थोड़ा कम हो जाए और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा। एंड इवेंचुअली यू विल बी, मतलब वो फियर को यू कैन ओवरकम दैट फियर एक्चुअली। ओके, सो ये आंसर बहुत अच्छा था कि फियर थोड़ा रहना जरूरी है, वरना आप अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे। दैट्स गुड। अच्छा, साथ में मुझे एक और बात पूछनी थी, जो कि इस बार हमें लग रहा था गेट और ईएस दोनों ही बहुत जी आसपास था। तो लास्ट मोमेंट जी में व्हाट वाज योर एक्चुअली मतलब फीलिंग कि भाई गेट भी है एंड जस्ट आफ्टर 1 वीक यू हैव टू सिट फॉर द ईएस एग्जाम आल्सो, सो व्हाट यू डिड एक्चुअली? Sir, actually, the up to gate, I was like not that much stressed. Actually, technical तो हम पढ़े हैं अच्छे से, वो हुआ। फिर उसके बाद का जो 1 वीक था, उसमें थोड़ा स्ट्रेस बिल्टअप हो गया, नॉन टेक सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है ये। फिर मैंने फिर देन आई थॉट दिस सेम सिचुएशन इज परसिस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड ओवर द एंटायर कंट्री। ये बस मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, इसको धीरे धीरे मतलब डरने से तो कुछ होगा नहीं। इससे अच्छा है कि मैंने क्या किया, वो वीक को नॉन टेक सब्जेक्ट्स को रिवीजन, वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को रिवाइज करके आई कीप्ट माय सेल्फ एंगेज। फिर धीरे धीरे मैंने वो फियर को थोड़ा थोड़ा मतलब ये क्या एलिवेट किया, और वो फिर उसको मैनेज किया थोड़ा। पर आपके सारे आंसर्स में व्हाट आई एम फीलिंग दैट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। कि भाई अगर पहले ही हमने जो सच्चाई है, ये डर रहना है, ये कंफ्यूजन रहना है, इसको एक्सेप्ट अगर कर लेता है कोई बच्चा, तो क्या है वो सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, मिनिमाइज कर सकता है और मैनेज कर सकता है। एलिमिनेट तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, दैट इज ऑल आवर ह्यूमन जी नेचर। वेरी नाइस। जी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बातें सच में होनी चाहिए थी ऑलरेडी आपने अडॉप्ट कर रखी थी, isn't it? जी जी। So that's all from our side, and many congratulations once again for your future endeavors, आपके कैरियर के लिए, और we hope कि आप आगे भी बहुत अच्छा करें अपने कैरियर में। थैंक यू शुभद्रा, शुभदर्शिनी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।